why they cannot give me the sharing rights here. सर अगली क्लास भी आप ही ले लो सर। सर एडमिन को बोलकर रिकॉर्डिंग ऑन करवा दीजिए। चलो आगे 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 हो गया सर हो चालू हो गया एडमिन। या रिकॉर्डिंग भी उन्होंने ऑन कर दी है। ओके, आई होप हैज इट मेड एनी डिफरेंस? अब थोड़ा बेटर दिख रहा है? यस सर। चलो, तो ये तो था कि अब मेरे को सबसे पहली चीज क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ना, इफ द ऑयल सरफेस और द वाटर सरफेस इज अप टू हियर देन ओनली द वेज इज फॉर्मिंग। अगर यही जो पानी है या ऑयल है, इफ इट इज टचिंग राइट अप टू द फॉरवर्ड बल्कहेड, अगर ये फॉरवर्ड बल्कहेड को टच कर रहा है देन द वेज इज नॉट फॉर्मिंग। सो प्लीज रिमेंबर दैट अगर मेरा ये जो ऑयल और वाटर रिमेन्स ऑन बोर्ड जो भी है, if it is touching the forward bulkhead like this, if it is going up to here, then wedge is not forming. Wedge is only forming if it is not touching the forward bulkhead. तो हमें सबसे पहले यही प्रूव करना है, यही हमें चेक करना है that ये जो मेरा ऑयल और वाटर है, it is not touching the forward bulkhead. अब उसको कैसे हम प्रूव कर सकते हैं? तो this is what we call whether the wedge is existing or not in the tank. So wedge is existing if the oil or water surface is not touching the forward bulkhead. So it is very simple. If you see, if your DL is less than DC, अगर DL मेरा DC के बराबर हो गया या DC से थोड़ा ज्यादा हो गया, that means the oil or water is touching the forward bulkhead. Now if I can prove that DL, this is your D, this DL is less than DC, that means the wedge is existing. Wedge is existing. So पहला क्वेश्चन और पहला पॉइंट तो ये आ जाता है, whether the oil or the water surface whatever is in the tank is in which form, is in normal condition or a wedge is forming. उसके लिए सिंपल है कि I have to prove that if I can see DL is less than DC, the wedge is existing. चलो ये भी अभी देख लेते हैं कि how do we can do this. अब आपके पास ये उसने अलेज दे दी वाटर की, ROB की, जो भी अलेज थी 19.9 मीटर है. Now simple, you take triangle UOT, again this is 90 degree, UO upon UT is equal to cos theta. मेरे को UT निकालना है, UT is equal to UO upon cos theta, same. अब मेरे पास UT की वैल्यू आ गई. UM is known to me. What is UM? Is the total depth of tank plus the allege port. Suppose this allege port is 1 meter above the depth and your tank height is 20 meter. तो UM कितना हो गया? 20 plus 1, 21. Now if I know UM is known to me, it's a known figure, height of the tank plus the allege port की height. So 21. Now if I minus from UM, if I subtract UT, what do I get? UM माइनस UT. इस UM में से टोटल डेप्थ में से मैंने जो UT निकाला उसको माइनस करता हूं तो मेरे पास TM की वैल्यू आ गई. Yes or no? Yes sir. Now I consider this triangle TML. Consider triangle TML. ये वाली ट्रायंगल को हम कंसीडर करते हैं. Now in this triangle if you see, TM is known, angle theta is known, I can find out the value of ML. So it is simple, TM upon ML is equal to tan theta. थीटा की वैल्यू मैंने निकाली हुई है, tan थीटा इज इक्वल टू ट्रिम अपॉन LBP, वही सेम. सो ML is equal to TM upon ML is equal to tan theta. So ML will be equal to TM upon tan theta. अब आपके पास ML की वैल्यू आ गई. What is DM? Same, the distance
और द अलेज पोर्ट हाउ मेनी मीटर्स फॉरवर्ड ऑफ योर आफ्ट बल्कहेड, ये भी मेरे को दिया होगा that your alleged port is so many meters forward of the aft bulkhead. That means dm is known. So dm plus ml is equal to dl. So dl की वैल्यू मेरे पास आ गई dm which is a plus ml. If this dl is less than dc, wedge exists. If dl less than dc, wedge is existing. I hope यहाँ तक clear. Anybody any doubt यहाँ तक? Now I have understood the oil or the water is in the wedge form. अब मेरे को इस wedge का volume निकालना है. How to calculate the volume of this wedge? Now we consider a bigger triangle KDL. What do we consider? Triangle KDL. DL is known to me. ये मैंने निकाल लिया. Theta is again known to me. KD upon DL is again equal to tan theta. मेरे को KD की वैल्यू चाहिए. KD is equal to DL into tan theta. ये KD की वैल्यू आ जाएगी. Now it is easy for me to calculate the area of this triangle KDL. Area of triangle KDL is simple, half base into height. Now if I multiply this area of triangle with the entire breadth of the tank, I am looking towards the tank, I know the area, and if this is multiplied by the entire breadth of the tank, I will get the volume of wedge. Volume is equal to entire breadth into your area of the triangle or the wedge. So you get the volume. अब ये क्वेश्चन, now this is थोड़ी सी आपको स्केच बनाना है. यार मेरे पास UO दिया, I just repeat. This allege will be given to you 19.9, and ये मेरे पास tank dimensions are there. How much the allege port is above, that is also with me, and I have calculated the volume. Now ये question आपको कैसे आएगा? Okay, you have loaded the ship. आपको allege दे देगा that you loaded 1 meter or 1.2 meter is the allege, and trim दे दी उसने, जो भी दे दी, trim list anything. I can calculate the total volume of the oil plus water. अब वो कहता है the water dip allege. So he may give you water dip allege or he may give you anything. यार इसके नीचे इतनी मेरे को water की allege मिली. That is what practically we do. After loading, we take the alleges, and then we take the water dips also, and then we take 24-hour dips, 48 hours, 72 hours, 96 hours, and keep transmitting to the chapter's owners. भाई पानी तो it takes time to settle, but sometimes a lot of water comes with the cargo. So on completion of loading, I have taken the allege. मेरे पास total oil आ गया. That includes oil plus water. And जब मैंने dip ली, क्वेश्चन में दे देगा आपको so much, 19.9 मीटर आपको water dip allege भी मिल गई. Now calculate the quantity of oil loaded. पानी को तो हम निकाल देंगे. So we calculate the total, and then we find out the volume of this water. So initially हमने क्या किया, आपके पास total volume आ गया, total volume of oil plus water, and volume of the wedge से मेरे पास volume of water है. Volume of water is known to me. इसमें से मैं subtract करता हूँ, तो आपके पास आ गया volume of oil loaded. अब ये आपने वॉल्यूम तक ही करना है, इसको आपने कन्वर्ट नहीं करना वेट पे. फाइनली जब आपके पास वॉल्यूम ऑफ ऑयल आया, नाउ वी विल कन्वर्ट VCF, WCF, एंड वी गेट द क्वांटिटी ऑफ ऑयल लोडेड. आई होप क्लियर. करें क्वेश्चन. सर ये फर्स्ट लाइन में क्या लिखा था? वॉल्यूम ऑफ वाटर से ऊपर, वॉल्यूम ऑफ वाटर से ऊपर, नीचे से सर.
या टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑयल प्लस वाटर। तो इनिशियल आपके पास अलेज है, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि इनिशियल अलेज इज 1.2। एग्जांपल में यहाँ पे आपको इसी क्वेश्चन में जो हम क्वेश्चन करेंगे, क्यों कहते हैं यार इनिशियल मेरे को जो अलेज मिली, सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ द टैंक, करेक्ट अलेज तो ये आनी थी, एंड इनिशियल अलेज जो आपको दे देता है कि इनिशियल अलेज इज सपोज ये मैंने ऑब्जर्व की है, इनिशियल अलेज से 1.2 मीटर, एंड ऑल्सो वाटर डिप अलेज ऑफ 19.9 मीटर। फाइंड आउट हाउ मच ऑयल लोडेड। तो ये तो मेरा आ गया टोटल ऑयल, इसको मैं करेक्ट करता हूँ, ऑब्जर्व्ड अलेज, करेक्ट अलेज, ऑब्जर्व्ड अलेज डिवाइड बाय cos थीटा प्लस माइनस दिस, अगर लिस्ट है। तो ये जो चीज है ये आपने याद रखनी है। फर्स्ट इज दिस इज योर टेप करेक्शन, दिस सेकंड थिंग इज योर ट्रिम करेक्शन, and this third thing is your list correction. This is what we have done. सर मतलब वेज वाले पार्ट में सर जैसे अभी लिखा होगा वॉल्यूम ऑफ टैंक और फिर बाद में डिप रह गया, तो पहले वॉल्यूम ऑफ टैंक का तो ये पूरा तामझाम कर दिया, टेप ट्रिम और लिस्ट जो कर दिया, और सर जो लास्ट में जो वेज वाला है उसमें फिर से करना पड़ेगा ना ये सब कुछ रिपीट? यस, सो वेज में जैसे हमने ये बताया, और सर ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है वॉल्यूम इक्वल टू बी इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सर राइट साइड, हाँ ये क्या है, बी क्या है? या DL वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगल, B इज द एंटायर ब्रेड्थ ऑफ द टैंक। सो ये मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया KDL, ये वाली ट्रायंगल थी KDL। अब मैंने ये बड़ी ट्रायंगल दी KDL, इस ट्रायंगल को मैं डील कर रहा हूँ। इस ट्रायंगल में मेरे को DL पता है, DL मैंने निकाल लिया, थीटा मेरे को पता है, सो आई कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल KDL इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और परपेंडिकुलर, हाफ बेस इंटू हाइट, इजंट इट? एरिया ऑफ ट्रायंगल। सर बेसिकली अपन जब ये करेक्टेड अलेज निकालेंगे वो UT आएगा अपने पास। यस, हमारे पास है ना? करेक्टेड UT आएगा, UT को हम टैंक हाइट से माइनस कर देंगे, और फिर उसके बाद है ना ये वाला बेस DM ये हाइट आ गई, इसको और ये दोनों ट्रायंगल लेके ये वाली KD निकाल लेंगे। नो पहले बच्चे हमने पहले हमारे पास TM आ गया, देन वी टेक दिस स्मॉलर ट्रायंगल TML। फर्स्ट वी विल टेक दिस ट्रायंगल TML। हाँ ठीक है सर, वो मतलब बेसिकली KDL का वॉल्यूम निकाल लेंगे इसके बाद, और जो टोटल वॉल्यूम आया पहले आएगा वो UT से, उससे वो निकाल लेंगे। यस, ये माइनस कर, ये एरिया आ गया। इस एरिया को मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ विद द एंटायर ब्रेड्थ ऑफ द टैंक, B इज द ब्रेड्थ ऑफ द टैंक, एरिया मल्टीप्लाइड बाय द एंटायर ब्रेड्थ विल गिव यू द वॉल्यूम। तो हमें DM कहाँ से पता चला? DM is the alleged port how many meters forward of the after bulkhead। ये DM is equal to this, यही डिस्टेंस आ रहा है नीचे। तो सर एक डाउट था, अगर जैसे कहीं टैंक्स में वो होता है जैसे साउंडिंग पाइप होती है ना, वैसे अलेज पाइप भी पूरा नीचे तक एक्सटेंडेड होता है, तो उसमें तो ये करेक्शन नहीं लगेगा? टैंकर्स पे नहीं होती बच्चे, टैंकर्स पे ओनली अलेज पोर्ट यहीं तक है। एंड तो मैंने खुद किया है केमिकल टैंकर पे, साउंडिंग पाइप वाज देयर, पूरा अलेज पाइप नीचे तक एक्सटेंडेड था, बीच में होल थे पूरी पाइप में ऊपर से नीचे तक। ओके देन तो और भी अच्छा हो गया, फिर तो वो एक किस्म का हो गया, बिकॉज आपकी टेप डिफ्लेक्ट ही नहीं होगी। फिर उसमें करेक्शन वगैरह कुछ नहीं लगेगा ना, उसमें कोई ट्रिम कोई लिस्ट कुछ है ही नहीं उसमें। नो उसमें सिर्फ आपकी टेप करेक्शन ही लगेगी। आई होप ये समझ के मैं वो भी कर देता हूँ, वो भी समझा देता हूँ आपको। इसको इरेज कर दूं आपको सबको, यहाँ पे तो नहीं किसी का डाउट? सर वॉल्यूम समझ में आ गया, उसके बाद डिप का बताया वो समझ में कुछ बताया सर? वॉल्यूम कैलकुलेशन सर जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ आएगा सर कि वो इसको डिटरमाइन कैसे करना है कि वेज में ये वेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वही मेन। वेरी गुड। मैं इसी टाइप का क्वेश्चन हम खोलेंगे अभी, इसी टाइप के सिमिलर क्वेश्चन करेंगे तो आप ज्यादा समझ जाएंगे। सर डिप का मतलब भी यही होता है वेज? सर डिप का मतलब क्या होता है? ओके, डिप का मतलब है, अगेन मैं बनाता हूँ, दोबारा से फिगर बनाता हूँ। डिप होती है कि जब आपने, जैसे मैंने बताया, दिस वर्ड इज कमिंग फ्रॉम व्हेन वी टेक द साउंडिंग रॉड से हम टैंक के नीचे तक जाके
हम उसको डिप करते हैं कि उसको मेजरमेंट करते हैं कि ये मेरा टैंक है। अब यहाँ मेरा अलेज पोर्ट था, ये जो है, यहाँ से मैंने साउंडिंग रॉड डाली एंड वो साउंडिंग रॉड जाके आपके टैंक को टच करेगी, isn't it? अब यहाँ पे पानी है, ये मेरी साउंडिंग रॉड है। बेसिकली साउंडिंग रॉड ऐसे है, ब्रास की रॉड है, उसके ऊपर आपने ये रोप लगाई है, ये आप टच करते हो, isn't it? अब जो पानी होगा वो इसको डिस्कलर कर देगा, बिकॉज मैंने इसके ऊपर टेप लगाई है। तो मेरे को ये पानी की साउंडिंग मिल जाएगी कि यार इतने सेंटीमीटर पानी है, 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। दिस इज बेसिकली द डिप। अब वो वर्ड डिप वही चल रहा है कि यस यार लेट्स गो एंड डिप द टैंक्स। अब आजकल हम इंस्टेड ऑफ दिस साउंडिंग पाइप, ये भी क्वेश्चन मतलब है। पानी की साउंडिंग है ना सर? यस बेसिकली यस। तो इसी की मैं दूसरी चीज करता हूँ कि आई एम लोअरिंग दिस एमएमसी। एमएमसी के आगे भी एक छोटा प्रोब लगा हुआ है। सर मतलब जो यूओ से नीचे गई है उसके वाली जो साउंडिंग है बेसिकली दैट इज यस। अब या तो मैं इसकी ये चीज दे दूं कि आपको मैं अलेज दे दूं, जैसे मैंने आपको कहा कि 19.9 मीटर, इससे नीचे मेरे को यूटीआई से आपको अलार्म आना शुरू हो जाएगा कि जैसे ही वो पानी के सरफेस को टच करेगा यूटीआई गिव्स यू अ डिफरेंट बीप। सो उससे हम इंटरफेस कह देते हैं। देसी भाषा में जब आप उसको साउंडिंग रॉड से चेक करते थे देन वी यूज्ड टू कॉल इट अ डिप, कि आपने डिप ली और आपको 5 सेंटीमीटर पानी मिला। 5 सेंटीमीटर मीन्स कि नीचे से 5 सेंटीमीटर मिला। सर जैसे इसमें इस क्वेश्चन में जैसे डिप दी हुई है, एग्जांपल एक्स सॉरी, तो डिप दी हुई है तो यू ओ प्लस जो ओ के नीचे गया लेंथ, वो डिप अपने को दे रखी है। उसका फायदा क्या हुआ, डिप का इधर फायदा क्या हुआ इस वाले में? जैसे डिप तो वाटर लेवल से यहाँ तक की लेंथ दे रखी है जैसे। यस अगेन आपको दूसरा क्वेश्चन आएगा। यहाँ तो मैंने आपको अलेज दे दी, दिस इज द 19.9 मीटर, दिस इज द अलेज, ओके। अब वो दूसरे क्वेश्चन में कहता है अ वाटर डिप ऑफ 15 सेंटीमीटर वाज ऑब्जर्व्ड। वाटर डिप ऑफ 15 सेंटीमीटर, दैट मींस ये चीज उसने आपको दे दी कि दिस इज 15 सेंटीमीटर। पर सर इसका जो एंगल है 15 सेंटीमीटर का या 90 डिग्री भी नहीं है, तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है, अब अगर मेरा जहाज सीधा होता तब तो मेरे को ये डिप ऐसे मिलनी थी। हाँ, isn't it? अब जैसे ही मेरा जहाज ट्रिम लेगा तो यही जो साउंडिंग रॉड है वो आपकी बेसिकली डिफ्लेक्ट होके ऐसे आ जाएगी। यस और नो? ठीक है, तो बेसिकली डिप कांस्टेंट रहती है। सो इफ द शिप इज इन अ ट्रिम्ड कंडीशन, सो आपको वो दे देता है कि शिप हैज गॉट अ 3 मीटर ट्रिम एंड द डिप वाज ऑब्जर्व्ड टू बी 15 सेंटीमीटर। दैट मींस आपको उसने ये चीज दे दी है कि भाई नीचे जो है पानी मेरे को 15 सेंटीमीटर मिला है जब मैंने डिप ली, बट द शिप वाज इन अ ट्रिम्ड कंडीशन। दैट मींस ये चीज मेरे को दी उसने। इफ द शिप वाज अपराइट देन आई एम डेफिनेटली गेटिंग ये चीज मेरे को 15 सेंटीमीटर है। दैट्स ओके सर। तो मतलब ये अपने को इस वाले में ये अलेज भी देवी अलेज नहीं दी हुई इस वाले में, जैसे 15 मीटर ट्रिम ही दे रखी है फॉर द एग्जांपल। तो ये 15 सेंटीमीटर ये और ये वाली 15 सेंटीमीटर बराबर है, मतलब वाटर लेवल अगर इवन कील पे हो या वो हो, डिप हमेशा सेम रहेगी। नो, ट्रिम कैलकुलेशन और टेप करेक्शन करना पड़ेगा उसके लिए, फिर ही पता लगेगा। करेक्ट, सेपरेट करना पड़ेगा उसके लिए। करेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वो क्वेश्चन मैं बाद में आऊंगा, इसके बाद आएंगे। पहले हम ये वाला जो क्वेश्चन है इसको कर लें। ये क्वेश्चन भी है जिसमें कि वो आपको डिप दे देता है। दैट इज डिप मींस नीचे से साउंडिंग। नॉर्मल वे द साउंडिंग ऑफ द वाटर इज 15 सेंटीमीटर। की साउंडिंग कैसे मिली? वाटर बाइंडिंग पेस, दैट इज कॉल्ड द डिप। सर इस केस में लेकिन सर टैंक की हाइट तो ऑलवेज द सेम है ना, तो उसमें से माइनस करना होगा ना। अच्छा, फर्क आ जाएगा। देखो अगर ये 15 सेंटीमीटर है और अगर मेरे टैंक लेकिन फिर करेक्टेड और अनकरेक्टेड का फर्क है ना। यस, तो ये 20 माइनस 15 जो है अगर मैं करता हूँ, अगर तो ये चीज थी तब तो ठीक है, बट इफ ही हैज गिवन मी डिप और साउंडिंग इन ट्रिम्ड कंडीशन देन आई कैन नॉट डू 20 माइनस 15। अब मेरे को ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। यू इमेजिन दिस, अगर मैं इसको सीधा डालता हूँ और टेप को टेढ़ा डालता हूँ तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो फर्क होगा, चाहे मिलीमीटर में ही हो। हाँ जी सर, क्वेश्चन करते हैं सर, फिर पता लगे। कोई बात नहीं, अभी इसको छोड़ दीजिए। फर्स्ट हम व्हाट वी डू, जो हमने पहले अभी तक अंडरस्टैंड किया कि whether the wedge is forming or not forming. If the wedge is forming, then how to do the calculation of the volume of the wedge.
ओके, पहले इतना समझिए, फिर हम जाएंगे कि अगर मेरे को डिप दी है तब उसको कैसे करना है। ऑलराइट सर ये जो वेज फॉर्मेशन हुआ है ये तो हमने ट्रिम के केस में किया, लिस्ट में तो एक कोने में कॉर्नर में इकट्ठा हो जाएगा। बच्चे, अगर लिस्ट होगी नॉर्मली आपको व्हेन द वेज इज फॉर्मिंग आपको लिस्ट नहीं देगा। अच्छा लिस्ट नहीं देगा, ठीक है। No. वैसे नॉर्मली प्रैक्टिकली तो सर कॉर्नर में हो जाएगा इकट्ठा ना। यस, फिर तो IIT जाना पड़ेगा हमें। ठीक है सर, ओके। ओके, अब आपका कुछ और क्वेश्चन था, एक और आपने बोला था इन बिटवीन, बिफोर आई शो यू द क्वेश्चन, समथिंग एल्स यू पॉइंटेड आउट। कुछ और आपने पॉइंट आउट किया था, एक तो ये साउंडिंग का था, या व्हाट यू आर सेइंग, जैसे आप साउंडिंग पाइप की बात कर रहे थे, वन ऑफ यू वाज टॉकिंग अबाउट साउंडिंग पाइप, कि आपके टैंकर में साउंडिंग पाइप थी विच इज वेरी वेरी, आई मीन नॉट अ नॉर्मल थिंग। टैंकर में डोंट गिव, ओनली पर्च पाइप होती है जहाँ से आप साउंडिंग नहीं लेते। अब सपोज आपके पास है, नाउ ये तो थी हम टेप ले रहे थे, अलेज टेप और MMC UTI जिससे भी हम ले रहे थे, तो हमको ये साउंडिंग मिल रही थी और अलेज और मिल रही थी UTI से। नाउ इन केस योर शिप इज फिटेड विद अ वेसो गेज और रेडार बीम सैप गेजेस। सर उसमें तो फिक्स्ड ही होता है सर, वो तो फिक्स्ड ही होता है ना। यस, मैं बच्चे थोड़ा समझा दूं उसको, बिकॉज फ्यू ऑफ यू जिन्होंने टैंकर्स पे नहीं किया वो थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। अब ये मेरा अलेज पोर्ट है, जो आपकी जिसे कहते हैं वेसो कहते हैं। वेसो इज नथिंग, इट इज अगेन अ टैंक मेजरिंग सिस्टम, वो यहाँ पे फिक्स रहता है। सो दैट थिंग इज फिक्स्ड ऑन योर डेक, एंड इसके ऊपर आपके पास उसको दिखेगा। बेसिकली वेसो गेज है क्या, देयर आर 2 वायर्स, पतली वायर्स होती है, दे आर फिक्स्ड एट द टैंक बॉटम। ये 2 वायर्स है जिसे हम गाइड वायर्स कहते हैं। ये गाइड वायर्स आपके टैंक बॉटम में फिक्स होती हैं, और इसके अंदर उसमें सारी ये आपकी टेप है, स्प्रिंग एक्शन से की हुई है। यहाँ पे आपकी विंडो होती है टू रीड द रीडिंग, एंड ये जो टेप है इट इज कनेक्टेड विद द फ्लोट। अब ये जो फ्लोट है दिस एक्चुअली वर्क्स विद द गाइड वायर्स। ये गाइड वायर्स के अंदर ये फ्लोट चलता है। आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, अदरवाइज स्प्रिंग लोडेड है, ये लोअर भी हो जाएगा, होइस्ट भी हो जाएगा, मैनुअली भी यू गॉट अ स्मॉल की, उससे हम उसको होइस्ट है कुछ भी कर सकते हैं। सो नाउ दिस फ्लोट इज मूविंग विद दिस गाइड वायर्स। अब अगर आपकी जहाज ट्रिम होता है, कुछ भी होता है, दिस फ्लोट इज नॉट गोइंग टू गेट डिफ्लेक्टेड लाइक अ टेप। तो इन केसेस में आपकी ये टेप करेक्शन जो है वो नहीं लगेगी, बिकॉज टेप इज नॉट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। अब अगर आप कहते हो कि आपने जो साउंडिंग पाइप देखी थी, साउंडिंग वाइज सेम थिंग, कि आपने यहाँ से साउंडिंग ले ली तो ऑयल का लेवल तो ठीक है, ये करेक्शन तो आ जाएगी। ऑयल लेवल तो ऐसे है आपके टैंक में, तो ये करेक्शन तो मेरे को लगेगी, ये वाली करेक्शन नहीं लगेगी, ये डिफ्लेक्शन वाली करेक्शन नहीं लगेगी। सो व्हाट वी कॉल द टेप करेक्शन, बट ट्रिम करेक्शन एंड लिस्ट करेक्शन तो हमें देनी पड़ेगी। तो ये तो है आपकी वेसो गेज। सेम थिंग इज विद द रेडार गेज। अब रेडार गेज में क्या होता है, उसमें भी अब एवरीथिंग इज फिक्स्ड ऑन डेक। ये आपका ऑयल सरफेस है, एंड यहाँ से जो रेडार बीम है, बेसिकली अ वेरी लो पावर रेडार बीम इज ट्रांसमिटेड, वेरी लो एनर्जी का। अब इसमें भी है, दिस इज फिक्स्ड ऑन डेक। सो जैसे ही जहाज जाएगा, सो ये जो गेज देगा ये पैरेलल टू योर आफ्ट बल्कहेड आएगी, तो इसमें भी आपकी टेप करेक्शन नहीं लगेगी। सो नॉर्मली इसकी जो अलेज है उन्होंने सब करेक्शन की होती है, दे गिव यू फ्रॉम द टैंक टॉप्स। तो उसमें ये भी नहीं आता कि अलेज OT कई बार दे सकता है था, रेडार बीम और द वेसो गेज इज हाफ अ मीटर अबव द डेक, कोई बात नहीं, मैंने हाफ अ मीटर ऐड ही करना है। सो दिस इज योर बेसिकली रेडार बीम और वेसो के अंदर ये चलेगा, सो आपकी टेप करेक्शंस नहीं आएंगी। तो ये चीज़ का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो लेट्स सी वन क्वेश्चन, ये जो मतलब ट्रिम और लिस्ट करेक्शन तो आएगा ही। यस सर वेसो गेज और कौन सा बोला आपने दूसरा? वन इज वेसो, वन इज रेडार बीम। पेपर में थोड़ी आता है ये। यस आपको देगा वो, अलेज वाज टेकन बाय रेडार बीम, रेडार गेज। अच्छा, सैप गेजेस कहते हैं। सैप इज अ कंपनी, फिनलैंड की कंपनी है। आई थिंक आई हैव आल्सो यूज्ड, कोई नई नहीं है, हर टाइम में भी था। So we used to use these sap gauges, or also very much
हैप्पी कि अरे वाह तो रेडार ये चीज़ें बड़ी एक्यूरेट होंगी, बट नो एनीवे उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। टैंक डायमेंशंस, एलबीपी, डेंसिटी ऑफ ऑयल, completion of loading vessel trim 3 meter, and ullage observed using sonic tape. Point 2. Answer is given. Water dip ullage of 20.94 watts. Calculate. क्वेश्चन लिख लीजिए। सर एक डाउट था। हाँ जी जी बोलो। सर जो टेप करेक्शन में थीटा एंगल लेते हैं वो हम ट्रिम एंगल लेते हैं। यस दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू ट्रिम बाय एलबीपी। करेक्ट। तो सर जब आपने क्वेश्चन करवाया था लिस्ट का क्वेश्चन करवाया तो उसमें ट्रिम नहीं था। ओके तो जो आपने करेक्शन ली थी आपने फिर वो जो कोस थीटा लिया था वो लीस्ट एंगल ले लिया था। करेक्ट। फिर जब ओके इस हिसाब से अगर ट्रिम नहीं है तो हम लीस्ट का एंगल लेंगे टू करेक्ट द टेप करेक्शन। यस यस। पर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में दोनों था, लीस्ट और ट्रिम दोनों था, फिर उस टाइम पे आपने सिर्फ ट्रिम करेक्शन लगाया था। करेक्ट बच्चों, उसमें क्या होता है कि अगर आप देखिए जब हमने उसमें डाउट था कि टेप ट्रिम एंड लिस्ट दोनों होंगे तो हम क्या करते हैं कि हमने जो आपकी हमारी टेप की डिफ्लेक्शन है उसको मैंने टेप डिफ्लेक्शन को लगा दिया, टेप करेक्शन लगा दी। और जब मैंने टेप करेक्शन लगा दी तो वो जो अलेज मेरे को मिली टेप करेक्शन लगाने के बाद दैट इज अ करेक्टेड अलेज आफ्टर डिसअलाइंग फॉर द ट्रिम और फॉर द टेप डिफ्लेक्शन। सर वो तो ट्रिम के कारण जो डिफ्लेक्शन हुई ना उसके कारण वो करेक्टेड है। या वो करेक्ट कर लिया। अब उसी अलेज को आप अगर ले लीजिए, सपोज मेरी 1.8 मीटर थी एंड मैंने उसको जब टेप करेक्शन लगाई ट्रिम कंडीशन में तब भी वो 1.8 ही आई। अब मैं उस 1.8 को ही लेके नाउ यू डिफ्लेक्टेड फॉर द लिस्ट। ओके 1.8 अभी उसकी टेप करेक्शन क्या अगेन ऑब्जर्व्ड अलेज अपॉन cos थीटा दैट मींस 1.8 डिवाइड बाय cos थीटा cos ऑफ 1 डिग्री। फिर वो प्रैक्टिकली सर शो करना हमें एग्जामिनेशन में बहुत करेक्शंस लगते हैं। नो नीड। ओके आप तो सीधा फॉर्मूला लिख रहे हैं सो वो बेसिकली सेम ही रहती है कि अदरवाइज आप शो कर सकते हो इफ यू आर शोइंग ऑल दिस। जैसे मैंने ये डेरिवेशन बताई है कि आप ट्रायंगल दिखाते हो, ट्रायंगल यूओपी देन ट्रायंगल पीईएफ और जो भी आपके पास ट्रायंगल थी पीईटी, अगर आप ट्रायंगल से दिखाते हो आप शो भी कर सकते हो, उसमें कोई हार्म नहीं है, बट वैल्यू आपकी सेम ही आएगी। इसलिए उसको यहाँ पे उन्होंने निकाल दिया। डबल नहीं हम कर सकते 1.8 प्लस माइनस ट्रिम करेक्शन फिर 1.8 प्लस माइनस लिस्ट करेक्शन, तो फिर 1.8 तो डबल हो गया ना। नहीं सर हाँ ये बात तो है सर। करेक्ट, तो डबल तो नहीं हुआ, हमने एक ही बार इसको किया। सो बेसिकली अगर प्रैक्टिकली देखिए तो हम उसको क्या कर रहे हैं 1.8 को मैंने टेप करेक्शन लगाई, ट्रिम वाली करेक्शन लगाई तो उसको मैं लेके आया तो 1.8 ही मिला। अब मैं ये जो करेक्टेड 1.8 एग्जाम्पल, चलो मैं एग्जाम्पल के लिए कहता हूँ, मैंने उसको करेक्ट किया तो मेरे को 1.81 मिली। टेप करेक्शन लगाने के बाद मेरी जो करेक्टेड अलेज थी वो 1.81 आ गई। दैट मीन्स मैं कहाँ पे आ गया यूटी पे। यस सर। अब ये यूटी जो है आप लिस्ट के लिए यूज कीजिए, 1.81 को यूज कीजिए। नाउ द शिप इज लिस्टेड एंड आपकी टेप जो है लिस्ट से डिफ्लेक्ट हो रही है। 1.8 डिवाइड बाय कॉस ऑफ लिस्ट, कॉस ऑफ 1 कॉस ऑफ 2 को। अब आपको सर अगर कॉस ऑफ 10 डिग्री लिस्ट है तो कॉस ऑफ 10 लगा दो, हो सकता है 1.85 बन जाए। करेक्ट।
फिर 1.85 यूज कीजिए। सो बेसिकली जो वैल्यू बिगर होगी करेक्शन की हम वो यूज करेंगे। करेक्ट करेक्ट। सो अगर नॉर्मली एंगल लीस्ट एंगल अगर 5-7 डिग्री से ज्यादा है तो हम देख लेंगे कौन सी वैल्यू ज्यादा है और वो करेक्शन लगाएंगे उस पे टेप करेक्शन। वेरी राइट, वेरी राइट, यस। ओके सर। चलो लिख लिया बच्चे क्वेश्चन सबने? So obtain the volume of water and oil. Consider water alone and establish if the wedge forms or not. If yes, do wedge calculation, obtain the volume of water and subtract the water volume and obtain the volume of oil. So पहले आपका sketch तो normal as usual कि हमने total volume of oil and water calculate करना है, तो वो तो हम as usual पहले उसने मेरे को दी है टॉप पे कितनी आ रही है 1.24, तो 1.24 को आप करेक्ट कीजिए विद योर वट एवर लिस्ट एंड ट्रिम। आई थिंक ओनली ट्रिम इज देयर 3 मीटर ट्रिम, so you get the corrected allege UT. Then see what is the not quantity, the volume of oil coming to you. Volume of oil plus water कितना आ रहा है आपके पास? पहले केस में कितनी आई करेक्टेड अलेज? 1.792। 1.79 सर 1.516। कुछ गड़बड़ दिखता है या 1.516 करेक्ट। एंड इसके साथ आप इसका टोटल वॉल्यूम निकाल लीजिए। सर इसमें दिया हुआ है पोर्ट साइड में सेंट्रल, उसका कोई यूज नहीं आएगा ना शायद? नो नो नो, नहीं आएगा ना? नहीं। ओके। सर वेज का कितना है? तो वेज का नहीं निकाला सर, वॉल्यूम निकाला सर टोटल इंक्लूडिंग ऑयल प्लस वाटर। कितना है? 15667.2 मीटर क्यूब। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ तक तो आपका एज यूजुअल कि हम स्ट्रेट वे आपने स्केच बनाया एंड डाउन बिलो मैंने तो डिस्क्राइब किया। यू कैन जस्ट राइट द करेक्टेड अलेज का फॉर्मूला आप लिख सकते हो।
ऑब्जर्व्ड एज अपॉन कॉस थीटा स्ट्रेट वे, तो आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू 0.86 डिग्री और समथिंग, सो 1.24 डिवाइड बाय कॉस थीटा 0.99, वो वही रहेगी 1.24 है। जस्ट टू शो यू 4 डिजिट पे जाने की जरूरत नहीं है, 1.24 है तो 1.24 ही रहने दीजिए। ट्रिम करेक्शन PT is equal to L/2 minus A into tan theta. You can directly write this and calculate 40 divided by 2 minus सर 1. इसमें सर कितने डेसिमल तक लिखने हैं सर? 3 तक या 4 तक? 3 से ज़्यादा मत जाइए। एंड जब आप एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पे भी 4 से ज़्यादा मत जाइए, थोड़ा फर्क आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ट्रिम करेक्शन आ गई स्ट्रेट वे, नो नीड टू गो टू दिस ट्राइंगल। आपने स्केच बना दिया, आपने एग्जामिनर को शो कर दिया कि L क्या है, A क्या है, थीटा क्या है, इट इज शोन। So you can straight away write trim correction is equal to L/2 minus A into tan theta is equal to 0.276. So the corrected edge for tape correction plus trim correction is equal to 1.24 plus 0.276, 1.56. So आपने सारे स्टेप्स उनको दिखा दिए शॉर्ट एंड क्रिस्प कि मैं कर क्या रहा हूँ, कैसे मैंने कैलकुलेट किया, स्केच भी बना दिया। एंड नाउ यू नो द वॉल्यूम ऑफ ऑयल एंड वाटर 15667.2 आ गया आपके पास। अब नेक्स्ट आपका वेज का आता है। सो वेज के लिए आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव मेड द स्केच। नाउ टू एस्टेब्लिश वेदर द वेज इज फॉर्मिंग और नॉट, सो नाउ हम एक और स्केच बनाते हैं कि जिसमें ये रेड वाला आपका जो है, रेड लाइन जो मैंने शो की है नीचे वाली, दिस इज द सरफेस ऑफ वाटर प्लेन एरिया। यहाँ मैंने प्रूव करना है कि ये जो DL है, ये जो लेंथ है, इट इज लेस देन द DC। DL is less than DC, length of the tank। अगर ये कम है तो wedge is forming। एंड ये आपने दिखा दिया 1.6, alleged port is 1.6 meters forward of the aft bulkhead। तो ये आपको it is equal to DM। अब यहाँ पे आपको थोड़ी ये कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी। ट्रायंगल UOT, UO अपॉन UT is cos थीटा, सो UT की वैल्यू आ गई, फिर TM की वैल्यू निकाली एंड देन KD की वैल्यू। सर वो जो हमने मतलब उसमें अपनी ये प्रूफ करने के टाइम पे किया है वो सारा फिर से करना पड़ेगा? जी बस ये दिखाना पड़ेगा लाइक दिस। अच्छा ऐसे दिखाना पड़ेगा, ओके। ऐसे रखना सर, देख लें। या ओके। सर एक बार टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑयल दिखाना कितना है सर? 15667.2। ओके सर, थैंक यू।
सर इसमें जो ये थीटा की वैल्यू है वो कितनी है? ये u अपॉन ut इक्वल टू cos थीटा। u upon cos theta थीटा की वैल्यू कितनी है सर? वही जो trim, yes, पिछली। right, trim upon LBP. और सर अगर मतलब एक कंडीशन में शुरू में लिखा है कि इतनी ट्रिम थी, अब लास्ट में बोलते हैं कि जब फाइनल ये अलेज लिया इसका तब ट्रिम बढ़ गई थी। करेक्ट। तो ट्रिम वो वाली यूज होगी जो बढ़ गई है। यस यस। ओके। वो केस आपका आता है जैसे आप डिस्चार्जिंग करने के लिए आए हो, व्हेन यू आर डिस्चार्जिंग कार्गो, सो इनिशियली शी मे हैव 1 मीटर ट्रिम एंड ऑन हाँ सर, कंप्लीशन फाइनल ऑफ में 3 मीटर डिस्चार्ज, हुआ है। या ऑन कंप्लीशन डिस्चार्ज यू मे हैव 3-4 मीटर ट्रिम। तो सर फाइनल उसके वेज कैलकुलेशन के लिए ये वाला यूज होगा, और इनिशियल डिस्चार्जिंग का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए 1 मीटर वाला ट्रिम यूज होगा, राइट सर? वेरी राइट। सर ये क्वेश्चन में अलेज कितना दिया था वाटर का, फ्री वाटर टिप का? 20.94। 2194, ओके। चलो ये हो गया, एंड देन इट बिकम्स आगे ट्रायंगल KDL, फिर हमने उसका एरिया ऑफ द ट्रायंगल मल्टीप्लाई बाय द एंटायर ब्रेथ 20 मीटर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू ब्रेथ, टैंक की ब्रेथ 20 मीटर, शिप की ब्रेथ नहीं रही, टैंक की ब्रेथ। ऑफ कोर्स शिप की ब्रेथ तो दी नहीं है, LBP दी है सिर्फ, एंड देन यू गेट द वॉल्यूम ऑफ एज इज 22.082 क्यूबिक मीटर्स एंड वॉल्यूम ऑफ ऑयल अब आपने निकालना है, ठीक है। सो डोंट वेस्ट टाइम कि पहले आप 15667 को भी मेट्रिक टन में कन्वर्ट करो, फिर इसको वॉल्यूम को भी मेट्रिक टन बनाओ, नो, वॉल्यूम टू वॉल्यूम, लास्ट में आपने देन यू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ ऑयल आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द वॉल्यूम ऑफ द वेज एंड VCF into WCF you get, this is the quantity of oil loaded। पानी के तो हम पैसे नहीं देंगे। सर इसमें ये BP कहाँ से निकाला, मतलब ये आप जो नीचे वाला ट्रायंगल है उसमें जो डिस्टेंस बचा हुआ है वो वाला डिस्टेंस, क्या ये वाला कौन सा कह रहे हो? DM कैसे निकाला? या DM बच्चे इक्वल टू ये जितना आपका हलेज पोर्ट इज फॉरवर्ड ऑफ द आफ्ट बल्कहेड, ठीक है सर, ये सेम रहेगा ना। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखाना प्लीज। चलो ठीक है डियर, हो जाएगा। हाँ सर वेट अ मिनट, 1 मिनट।
और अगर सर अभी इसी क्वेश्चन में ये टीएम दिया होता और यूटी ना दिया होता, टीएम दिया होता और यूटी ना दिया होता और ट्रिम भी चेंज हो गई होती। ये देखो इस क्वेश्चन में दूसरा क्या होता है कि सपोज वो कहता है कि आपको यहाँ पे वो रेडार बीम लगा देता है, फिर रेडार नहीं नहीं गेज। सर, एक क्वेश्चन सर देखा था जिसमें ना ये टीएम की वैल्यू दी हुई थी, वो कैसे दे सॉरी देगा? नॉट टीएम की, सॉरी सर, ये ओ से जो एम आना ना, जैसे ओ से एफ लगा लो हाँ एक्सटेंडेड। हाँ 15 सेंटीमीटर। आता हूँ मैं उस क्वेश्चन पे भी नेक्स्ट। ये चीज़ दी हुई थी। अच्छा हाँ सर, आ जाना, ठीक है सर। ठीक है, अभी तो टाइम हो गया है तो आपको मैं फिगर दिखा देता हूँ। आई थिंक यू मे बी टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग। ये वाला तो पिछला क्वेश्चन सर, स्टेटमेंट सर, क्वेश्चन हाँ ऐसे, हाँ ओएल दिया समझो, हाँ जी हाँ जी। तो करेंगे, डोंट वरी, हाँ थोड़ी पेशेंस रखिए, बस पहुंच जाएंगे यहाँ तक भी। नहीं सर पहुंच जाएंगे, पिछला अभी तो पिछला रास्ता ही नहीं हुआ सर, आगे तो क्या ही पहुंचना कोई है। बात नहीं, आपको लग रहा है एक बार ही हो गया ना, फिर आपको देखो अभी आपने राइट फ्रॉम द बेसिक से शुरू किया है, सो आपको देखना नहीं पड़ेगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे वो बेसिक्स भी यूज हो रहे हैं। देखो वॉल्यूम वीसीएफ डब्ल्यूसीएफ भी यूज हो रहा है। फर्स्ट टाइम आपको फर्स्ट ईयर में यार वीसीएफ डब्ल्यूसीएफ कैसे निकालेंगे, टिप्स पे हो गया। जब तक हम लास्ट में पहुंचेंगे आपका वेज वेज सब टिप पे हो जाएगा, आपको कुछ नहीं देखना पड़ेगा। सर बोलिए। सर मेरा तो एक्चुअल में ये जो लास्ट आया था ना, जो ये टोटल वैल्यू करेक्टेड एलेज आया था आफ्टर वॉल्यूम, दैट वाज 20.942। 20.942 ये तो उसने दिया हुआ ऑलरेडी। ये इसको नहीं आपने सर, यूटी 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 ओके, यूटी आपका कितना आया था? 20.942। यूटी इज इक्वल टू इतने। ठीक है ना, यूटी उतना ही है। सर उसके बाद जैसे ये ऊपर से जो दे रखा था, मैंने 1.6 माइनस कर दिया था इसमें से। यूटी ठीक है 20.942 ठीक तो है। हाँ 20 प्लस 1.1 माइनस 20 पर ये 1.1 मीटर एलेज पोर्ट ऊपर भी तो है डेस्क से। हाँ सर, मैंने वैसे 1.6 कर दिया। ठीक है सर, मैं देखता हूँ। चलो विल कंटिन्यू, नेवर माइंड। आज कल की हमारी, कल हम मैथ लेंगे और तो टाइट्स को करेंगे, तो विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीक, डोंट वरी। थोड़ा सा आपको चांस मिलता है तो जो एटलीस्ट किया हमने सो फार वट एवर वी हैव डन, उसमें थॉरो रहिए और वेरी थॉरो व्हाट वी आर डूइंग, फिर हम आगे आपको आसानी आती जाएगी। ओके सर। बाय बाय। सर हाँ जी सर, ये टाइड का एक डाउट पूछना था। बोलो बोलो। सर टाइड में जो आपने हार्मोनिक कांस्टेंट मेथड बताया, वो सर सेकेंडरी पोर्ट पे लग सकता है? ऑफ कोर्स किसी भी पोर्ट पे लग सकता है बच्चे। ठीक है सर। उसके बाद सर जो आपने हार्मोनिक कांस्टेंट मेथड में जो करेक्शन बताई थी आपने M2 S2 की, उसमें किसी पर्टिकुलर पोर्ट पे दो करेक्शन दी हुई है सर, M2 I'll S2। come to that. Yeah, next tomorrow I think हमारी क्लास है, we will take up all those doubts. Okay? और ठीक है सर। Yeah. ओके सर। Okay dear. Bye bye. ओके सर, थैंक यू। Bye bye. Welcome.